our society. And through this condition, they wanted to make them a part of our society. Actually, the purpose of writer was to bring them in the stream of our society. So how she felt the miserable condition of these children, she have written in this story. So yesterday you saw how many of the children who don't have even chappal. They all are barefooted, picking the racks barefooted. Many times they became encounter with the writer, and writer asked them, why you don't have chappal? Many of them answered that my mother have not purchased for me. Many of them are telling that we are not in habit of wearing the chappal. So you saw how Sahabe Alam and one more boy, though who wanted to have a chappal, but his parents are unable to manage it. So here now I am going to share the screen. Let's see the more about the two boys. Lost screen. Can you see everyone? Yes, Yes. sir. So yeah, just wait. Yeah, from here, yesterday we all saw how the acquaintance of writer have taken him to Simapuri, and we all have learnt how in Simapuri about 10,000 rag pickers are residing there. They all are living near the garbage, so their condition is very miserable. They all are far away, very far away from all the facility what has been given in the society. So it's a very miserable condition of the people of Simapuri. That is the far away from Ghaziabad, UP. So let's see the another story. What's more, it shows the condition of our society. Yeah, from here I would like one winter morning. One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game. He hums, content of watch it standing behind the fence. Do you know, children, what happened? One day, when the writer was just going somewhere, she became with counter with the Sahib again. That time, Sahib was watching of the people those who were playing the tennis. Actually, एक दिन जब लेखिका कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो साहेब है, साहेब आलम जिसका पूरा नाम था, वो खड़ा होकर के जस्ट टेनिस जो मैदान है वहां पर खड़ा होकर के फेंस के पास जो चार दीवारी होती है वहां खड़ा होकर के दो बच्चों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है और मन में वो बड़बड़ा रहा है। मन में क्या बड़बड़ा रहा है? आई लाइक द गेम। ही हम्स। हम्स मतलब होते हैं अपने आप में जो है मन में बड़बड़ाना। आई लाइक द गेम, मुझे भी यह गेम पसंद है। आई लाइक द गेम। Contento watch it standing behind the fence. Behind the fence मतलब चार दीवारी, फेंस चार दीवारी के मतलब दीवार के पीछे से खड़ा होकर के वह देखता है और वो अपनी मन की इच्छा को जाहिर करता है कि मैं भी पसंद करता हूं गेम। I go inside when no one is around. He admit, वह बोला
कि जब कोई नहीं रहता है तब मैं अंदर जाता हूँ। इनसाइड when no one is around, he admits, वह बोलता है कि जब वहां कोई नहीं रहता है तो मैं वहां पर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर होता है वह वहां पर जो झूले लगे हुए हैं उसमें मुझे अलाउ करता है झूलने के लिए। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज that look strange over his discolored shirt and shorts. उन बच्चों को देखा देखी, मतलब देख करके ये कॉपी करना चाहता है, और साहिब आलम ने क्या किया, उस प्रकार के जो है अपना टेनिस का जो शू होता है वो पहन लेता है, लेकिन नीचे तो पहन लेता है लेकिन ऊपर की जो यूनिफॉर्म है वो उसके जैसे नहीं है जैसे अन्य बच्चे पहनते हैं, शर्ट्स एंड शॉर्ट। डिसकलर्ड, डिसकलर्ड मतलब जो एक यूनिफॉर्म होते हैं टेनिस प्लेयर का वो तो नहीं है, लेकिन किसी तरह से नीचे वाला जो जूता है वो मैनेज कर लेता है। He says in the manner of an explanation, the fact that they are discarded through our some rich boy means ये है कि जो अमीर बच्चे हैं, रिच बॉय लिखा है मतलब अमीर बच्चों का भी वो कॉपी करना चाहते हैं। दे वांटेड टू बी लाइक एज ए रिच बॉय, व्हाटएवर दे आर डूइंग देयर दे ऑल वांटेड टू डू। रैग पिकर्स, ये जो रैग पिकर बच्चे हैं ये अभी उनकी कॉपी करना चाहते हैं। who perhaps refuse to wear them because of a hole in one of them doesn't bother him। होल ऑफ वन इन देम मतलब ये है कि जैसे उनके कपड़े क्या होते थे, उनके कपड़े तो फटे पुराने होते थे, तो उनके बीच में ये जो है शोभा नहीं देता है, क्योंकि यूनिफॉर्म तो पूरा की पूरा तब होगा ना जब वो रिच होंगे और वो खर्च करेंगे तब बनेगा, लेकिन एक मामूली शूज पहन लेने से वो तो टेनिस का मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे। डजंट बॉदर हिम ना, फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, एक ने तो नंगे पांव है, इवन शूज विद अ होल इन ए ड्रीम केम ट्रू, बट द गेम बट व्हाट द राइटर रिटन है, होल इन ए ड्रीम केम ट्रू, लेकिन उनके जो सपने हैं वो छोटे नहीं हैं। भले इनके जूते हैं नहीं हैं, जूते में होल है, कपड़े में होल है, बट इनके सपने बड़े हैं। बट द गेम इज but the game he is watching so intently is out of his reach, लेकिन जो भी वो गेम देख रहे हैं they all are out of reach, मतलब ये इन सबों के पहुंच के बाहर है, मतलब they can't play that type of game because this game are very costly। ये गेम तो बहुत कॉस्टली है, वो तो खेल नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी इच्छा जो विष है वो वास्तव में बहुत बड़े हैं। इनके सपने भी हैं लेकिन सारे सपने जो है वो रखे के रखे रह जाते हैं, बिकॉज दे आर पुअर। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, फिर लेखिका को भेंट हुई है, तो इस बार जो है साहेब जो है कहाँ जा रहे थे, मिल्क बूथ की ओर। इन हिज हैंड इज ए स्टील कंसिस्टर, I now work in a tea stall down the road, he say। जब लेखिका पूछी कहाँ जा रहे हो, तो साहब ने कहा अभी मैं चाय की दुकान पर काम करता हूँ। His hand is in a steel container, I now work in a tea stall down the road। इस रोड के किनारे मतलब कि पीछे में अभी मैं काम करता हूँ। कहाँ पर काम करने शुरू कर दिया हूँ, टी स्टॉल माने चाय के दुकान पर। He say pointing in द डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर था, वह हाथ से दिखाते हुए लेखिका को बोला कि मैडम अब मैं चाय की दुकान पर काम करने लगा हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, इसके लिए मुझे 800 रुपये तनख्वाह मिलते हैं और मुझे दिन भर का भोजन भी मिल जाता है। लेखिका ने पूछा होगा कि शायद व्हाट मनी आर यू ड्रॉइंग फ्रॉम दैट स्टॉल, तो ही टेलिंग दैट की अबाउट 800 रुपीज एंड मील्स,
₹800 भी मिल जाते हैं मुझे और खाने के पैसे भी मिल जाते हैं। उसने बता दिया क्या दिस अमाउंट आई एम गेटिंग फ्रॉम दर। डज ही लाइक द जॉब? क्या तुम्हें जॉब पसंद है? आई आस्क। हिज फेस आई सी, मैंने उसका चेहरा देखा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर बिल्कुल कोई इस प्रकार की बातें नहीं थी, केयर फ्री। द स्टील कंसिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। आज जो बर्तन लिया था वो स्टील का कंटेनर, वो कहीं ज्यादा भारी थे उसके बैग से जो पीठ पर लिया करता था। आपको तो पता ही है, रैग पिकर के जो पीठ पर शोल्डर पर जो थैले होते हैं उसमें ज्यादा हेवी सामान तो होते नहीं है। क्या होते हैं? मामूली प्लास्टिक के टी कप होते हैं, प्लास्टिक ही होते हैं, प्लास्टिक के गिलास होते हैं, जो गार्बेज पर होते हैं ये सब वो चुनते हैं। तो लेखिका कह रही है कि आज जो हाथ में उसके एक स्टील का मामूली से कंटेनर है वो भी ज्यादा भारी है उसके उस बोरी से जो अपने शोल्डर के ऊपर लेकर के वो ढोता है। The bag was his. Bag is would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The consister belonged to the man who owns the tea shop. करा कि वो जो कंसिस्टर था चाय की केतली वो दुकानदार का था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। करा कि साहेब कभी भी उस जो कंसिस्टर है उसका मालिक नहीं बन पाया। मालिक नहीं बन पाया का मतलब है कि उसके पास उतना पैसे नहीं थे जो उस प्रकार के बर्तन वो खरीद सके। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। Now the story is going to be started of another boy, Mukesh. Mukesh, who wanted to become a mechanical engineer. I want to drive a car. बोला मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मैकेनिक बनना है। Do you know anything about cars? I asked. मैंने पूछा, मतलब लेखिका ने पूछा, क्या तुम्हें कार के बारे में और कुछ पता होता है या नहीं है? I will learn to drive a car. He answered, उसने कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीख लूंगा। I will learn to drive a car. He answered, looking straight into my eyes. वह मेरी आंखों की तरफ देखते हुए इशारा किया कि कोई बात नहीं मैम, मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा। यदि आप मुझे चांस दे तो I can learn it. ये ड्रीम looks like a mirage amidst the dust of the street that fill his town, Firozabad. Where the Mukesh is residing? Mukesh is residing in the Firozabad. उन धूल भरी गलियों में मुकेश रहता है लेकिन उसके सपने उड़ान भरने के हैं। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, पतली गलियों में रहता है जहां की सड़कें टूटी हुई है, डस्ट है, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। फेमस फॉर इट्स बैंगल, और उसमें भी फिरोजाबाद जहां वो रहता है वो गली किस लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए। मतलब आप देखेंगे हमारे इंडिया में मैक्सिमम जितने चूड़ियां बनती है वो मैक्सिमम चूड़ियां बन के आती है फिरोजाबाद से। और ये फिरोजाबाद कहाँ है? जस्ट दिल्ली से सटे हुए यूपी का एक शहर है फिरोजाबाद। यह जो है चूड़ियों का कारखाना है। यहाँ पर मैक्सिमम चाइल्ड लेबर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं बिलो 18, वो यहाँ पर फैक्ट्री में काम करते हैं। आज उसी में से एक बच्चा मुकेश की कहानी हम पढ़ रहे हैं। मुकेश फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के कारखाने में काम कर रहा है लेकिन उसके सपने मैकेनिक बनने का है। जब उसका इनकाउंटर हुआ लेखिका के साथ तो अपने मन की बातें बोल दिया। Famous for its bangle, every other family in Firozabad is engaged in making bangle। कहा कि मैक्सिमम घरों में यह जो है रोजगार
आप देख सकते हैं फिरोजाबाद में। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिली spent generation walking around furnaces, welding glass, making bangle for all the women in the landed sim. यहाँ मैक्सिमम ग्लासेस के काम होते हैं, मतलब चूड़ियां बनती है। और मतलब स्पेंड जेनरेशन मतलब है कि बहुत फैमिली जो पुराने समय से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी इस रोजगार में लगे हुए हैं। मतलब चूड़ी बनाने के कारखानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लोग इसी काम में अब तक यहाँ पर लगे हुए हैं। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सिम्स। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम। उसी में से मुकेश का परिवार भी एक है जो चूड़ी बनाने के काम करते हैं। नन ऑफ देम नो दैट इट इज illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cell without air and light, that the law। आपको पता है कानून के अनुसार इतने छोटे बच्चों को काम करना इतने टेम्परेचर में यह कानूनन अपराध है। कोई भी अंडर एज बच्चे 18 ईयर्स से बिलो इन कंपनियों में काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी के मालिक होते हैं, फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं, वो मजबूरी का फायदा लेकर के इन बच्चों को जो है वह लेबर का काम कराते हैं। और मैक्सिमम इसमें छोटे छोटे बच्चे ही काम करते हैं, लेकिन कानून के अनुसार यह इलीगल है। इफ इनफोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eye। आप देखिए कितना लॉस है। एक तो करा लगभग 20,000 बच्चे वहां पर काम में लगे हुए हैं और हाई टेम्परेचर में और लाइट में काम करने के कारण कुछ दिनों के बाद इन बच्चों के आंखों की रोशनी कमजोर पड़ जाती है। It is a big loss for the small children though who are busy in working this type of job in where? Firozabad. Mukesh eyes beam as he volunteered to take me or took me home, which he proudly says is being rebuilt। उसी में से मुकेश की आंख की रोशनी भी कमजोर पड़ गई है। जब वो एक बार घर जा रहा था तो जो है वो बात करने से, लेखिका के साथ बात करने से पता चला कि मुकेश की आंख भी कमजोर पड़ गई है, जो अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा। प्राउडली से इज बीइंग रीबिल्ट, मैंने बोला कि फिर से आ जाएंगे रोशनी। मेरी आंख की रोशनी तो धीरे धीरे कम हो गई है बट ये आ जाएंगे, क्योंकि मुकेश को तो पता ही नहीं है, वो छोटा बच्चा है। वी वॉक डाउन stinking lanes choked with garbage, past home that remain hovel with crumbling walls, OV door, no window, crowded with family of human and animal congesting in a प्राइमवेल स्टेट। अब वो कंडीशन बता रहा है जहां वह रहता था। कहा कि रहने वाली जो जगह है उसके वास्तव में काफी जो है वो बैड कंडीशन के थे। मतलब है कि उनके आसपास जो है कबाड़ था, गार्बेजेस थे, नलियां बह रही थी, नाले बह रहे थे, रोशनी नहीं आ रही थी उनके घरों में, कंजस्टेड प्लेस था। वैसे जहाँ पर मुकेश रहा करता था। with his foot door up one such house banks of wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack in one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which silt a large vessel of sizzling spinach leaves on the ground in large aluminum plates. Sealing spinach leaf on the ground in large aluminum
platter are more chopped vegetables. A frail young woman, a frail मतलब weak, a frail young woman is cooking the evening meal for the होल फैमिली। लेखिका जब उस मुकेश के साथ उसके घर जा रही है, उन्होंने देखा कि इनके रहने की जो जगह है वो काफी फटे पुराने फटेहाल स्थिति में लोग रहते हैं। टीन का जो है छज्जा है, घर जो है वो लकड़ी के बने हुए हैं। फिर क्या, एक जो वीक महिला पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी। थ्रू आई filled with smoke she smiled। कहा कि पूरे धुएं भरे हुए थे उसके घरों में। धुएं क्यों भरे हुए थे? क्योंकि खाना पकाने के जो मेथड थे इनके घरों में, गैस चूल्हे नहीं थे, तो वो जो जला करके खाने पकाते थे। जिस समय लेकर जा रही है वो देखा कि पूरे घर इसके धुएं से भरे हुए हैं। उसी में एक लेडी मुस्कुराती है। सी द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो लेडी कौन थी? मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज्यादा वो एज की नहीं थी। शी हैज बिगन टू एल्डर ब्रदर, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ हाउस। आज वो पूरे परिवार की बहू थी, डॉटर इन लॉ थी, और वही घर संभालने का काम करती थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। वो 3 लोगों को अच्छी तरह संभालती थी, मतलब खाना बनाना, उनके कपड़े साफ करना, उन्हें मैनेज करना, एक महिला इन सबों को देखती थी। When the older man enter, जब कोई बूढ़े लोग आते थे, she gently withdraw behind the broken wall and bring her well closer to her face। जब कोई ओल्ड एज के लोग आते थे तो वो पर्दा कर लेती थी। ये तो सिस्टम पता ही है आपको कि जब कोई ओल्ड एज के लोग घर में आते हैं तो पर्दा प्रथा आज भी है। जो बहुएं हैं क्या कर लेती हैं? वो पर्दा कर लेती हैं। तो एक बूढ़ा व्यक्ति उनके घर में आए और वो जब देख करके वो क्या कर ली, वेल, वेल मतलब पर्दा है, वेल क्लोजर टू हर फेस, वो अपने चेहरे को ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग वो भी फॉलो करती है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। In this case, the elder is an improvised bangle maker। और जो बूढ़े लोग होते थे वो जो है क्या है, improvised बैंगल मेकर। वो जो है बहुत पुराने समय से वो इसी धंधे में लगे हुए थे। Despite long year of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house। यद्यपि कि वो इतनी लंबे समय से काम कर रहे हैं, फिर भी अपने घरों को आज तक जो है वो मरम्मत नहीं करा पाए। मतलब उनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई, उसी पुराने फटे हाल स्थिति में आज भी हैं। जबकि इससे पहले वह सिलाई का काम करते थे, फिर बैंगल बनाने का काम करने लगे, फिर भी आज भी उनके घर की स्थिति वैसा के वैसा ही है। सेंड ही 2 sons to school, all he has managed to do in teach them what he knows, the art of making bangle। यदि उनके घर में कोई पढ़ाई था, कोई कला थी, एकमात्र how to make a bangle, चूड़ी कैसे बनाया जाए। बाकी बच्चे तो स्कूल जाते हैं, डिफरेंट एजुकेशन सीखते हैं, अलग अलग प्रकार के विषय पढ़ते हैं, लेकिन उनके घर में केवल एक ही पढ़ाई होती है, हाउ टू मेक अ बैंगल, चूड़ी कैसे बनाया जाए। आपने देखा, इसके माध्यम से लेखिका जो है ये दर्शाना चाहती है कि किस प्रकार से ऐसे घरों के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जो है अनटच्ड हैं, एजुकेशन से बिल्कुल अनटच्ड हैं, उनके पास अभी एजुकेशन नहीं गई है। जो बेसिक जो है हमारा एक राइट है अकॉर्डिंग टू आवर लॉ, उससे वो पीछे अछूते हैं। आज वो पैदा होते ही, जन्म लेते ही चूड़ी बनाने का काम करने लगते हैं। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, से मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी बोलती है इसका कर्म में यही लिखा हुआ था, इसकी डेस्टिनी यही है। हु हैज वॉच हर ओन हस्बैंड
go blind with the dust from polishing the glass of Bengal. यद्यपि कि उस महिला के हस्बैंड इसी चूड़ी का काम करते करते वो अंधा भी हो चुका है. Can a God given lineage ever be broken? क्या ईश्वर इसकी भरपाई कर पाएंगे? She implies. Born in the caste of Bengal maker, they have seen nothing but Bengal. चूंकि ऐसे खानदान में वो पैदा हुए जो शुरू से ही चूड़ी बनाने का काम करते थे, सिवाय चूड़ी के वो आज तक कुछ भी सीख नहीं पाए. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad, a spiral of bangles, sunny, gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven color of the rainbow lie in mountain on unkempt yard are piled on four-wheeler hand cart. करा कि जितने प्रकार की चूड़ियां हैं, सभी प्रकार की चूड़ियां उनके घरों में फोर व्हीलर गाड़ी पर रखी रहती है. Pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. अब उन गाड़ियों को एक कोई बंदा लेकर के जाता है जिसे हम ठेला वाला कहते हैं. हम यदि इनफॉर्मल वे में बोले तो ठेला वाला, तो ठेले वाले जो है वो अपने ठेले पर चूड़ियों को रख करके और गलियों में आवाज लगा करके ये चूड़ियां बेचने का काम करते हैं. The shanty town and in dark hutments next to lines of flame of flickering of all lamps. Still boy and girl with their father and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangle. करा कि वो ग्लास से शीशे को एक फोल्ड करके वह राउंड राउंड जो है वो बनाने का काम कर रहे थे. यहाँ तक कि लड़के और लड़कियां हर मेंबर इसी काम में लगे हुए थे. Their eye are more adjusted to the dark than to the light outside. करा कि वह अंधेरे में उनकी आंखें काफी काम करती थी. अंधेरे में काम करते करते उनकी हैबिट हो गई थी. That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. यही तो कारण था कि बड़ा होने से पहले, एडल्ट होने से पहले ही उनकी आंख की रोशनी चल जाती थी, गायब हो जाती थी. जैसा कि दादी ने दादा के बारे में कहा है कहानी में, और मुकेश ने भी जैसा कि बताया था उसकी आंख की रोशनी कमजोर पड़ गई है.